Everyone, welcome to LPT. So guys, the CMAT forms are already out. As you know that the form has started on the 17th October and the last date is 17th November 2025. And the last date to submit the application form is 18th November, right? Correction in particular in application form will be on 2021 November. Rest of the dates will be announced later. The exam date, the venue and everything will be in the coming time, right? So to register, you have to log into the websites given here or any of the two websites, right? Once you visit these website, this is how it looks like. Once you click on this is the website, right? So after clicking on the website, you will be redirected to the CMAT website. तो यहाँ पे this is inviting online application for common management test. This is the notification, right? If you just move downwards, तो यहाँ पर आपको candidate activity मिलेगा where you have to click on registration for CMAT 2026 and you will be redirected to this page. ठीक है? So the registration involves that you have to first apply, you have to register yourself first. उसके बाद आपको application form भरना है, then you have to pay the fees and then download your confirmation, right? So if you have already registered, so you can click over this third dialog box, login. But if you starting, then you have to click on the new registration. Once you have to click on this new registration, right? So once you click on this new registration, you will be redirected to this window, right? This is the next window. In this window, you have to go through all the details. ठीक है, यहाँ पे आपको application form दिखेगा. For the general male candidate, it is 2500, right? For the female candidate, it is 1250 and 1250 for all the other categories, right? So if you scroll down on this page, right, you have to go through these details which is given on the same page. तो यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करना है, उसके लिए भी क्राइटेरिया इज गिवन, ठीक है. एंड एट द बॉटम यू विल फाइंड दिस डायलॉग बॉक्स, ठीक है. इस पे क्लिक करने के बाद व्हेन यू सबमिट, राइट, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द पेज. अब ऐसा विंडो खुलेगा, उसमें यू हैव टू राइट योर नेम, ठीक है. नेम पे ध्यान रखना है दैट वट एवर नेम इज ऑन योर 10th सर्टिफिकेट, फादर्स नेम, राइट, mother's name, same as in the 10th certificate, no change to it. Then comes your date of birth, then gender, right? And same details वापस repeat होंगी just to confirm the details. उसके बाद it comes your address, ठीक है, country, state, district, your pin code, right? After that आपको एक email address चाहिए and give a email address, right? क्योंकि सारे details, admit card and everything will be on your email address. Then आपको एक mobile number डालना है, ठीक है. Alternate number is up to you, ठीक है. That's it, the address details. उसके नीचे you will find the your present address जो आपका permanent address है, ठीक है. अगर वो same as present address है तो you can click on it or else you can give your permanent address, ठीक है. उसके बाद एक अगला जो विंडो, उसके नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यू हैव टू सेट द पासवर्ड, ठीक है. पासवर्ड के साथ यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन दे विल आस्क, तो वो सिक्योरिटी क्वेश्चन देयर विल बी अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, उसमें से यू कैन सिलेक्ट एनीवन, ठीक है. एंड आंसर आप अकॉर्डिंगली कुछ भी रख सकते हो विच विल बी लेटर यूज्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर योर, अगर पासवर्ड भूल जाते हो, ठीक है. देन एंटर द कैप्चा जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसी को यहाँ पे फिल कर देना एंड क्लिक ऑन सबमिट. सबमिट करने के बाद आपके पास एक रिव्यू पेज आएगा, ठीक है. डिटेल्स बहुत ध्यान से भरना है बिकॉज ऑल द डिटेल्स जब आप बाद में करेक्शन विंडो आएगा तो इट इज नॉट नेसेसरी कि सारी डिटेल्स वहां पे करेक्ट हो पाएंगी, ठीक है. माइट भी जनरली सिर्फ नेम और मैक्स टू मैक्स डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, तो इसलिए बाकी डिटेल्स बहुत ध्यान से भरना है. तो रिव्यू पेज में एक बार गो थ्रू द स्पेलिंग्स, ठीक है, ऑल द स्पेलिंग्स, डेट्स, उसको एक बार ध्यान से कंफर्म कर लेना, ठीक है. एड्रेस, फोन नंबर, एवरीथिंग शुड बी क्रॉस चेक्ड, ठीक है. जो भी आपने ऊपर फॉर्म भरा है उसका एक रिव्यू आपके पास आएगा, ठीक है. देन यू हैव टू क्लिक ऑन ऑल दिस डायलॉग बॉक्स की जो भी डिटेल्स है, योर नेम इज करेक्ट, फादर्स नेम इज करेक्ट, मदर्स नेम इज करेक्ट, डेट ऑफ बर्थ इज करेक्ट, जेंडर इज करेक्ट, एड्रेस इज करेक्ट, मोबाइल नंबर इज करेक्ट एंड ईमेल एड्रेस इज करेक्ट, ठीक है. तो वहां पर आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे. अगर कोई चेंज करना है तो यू कैन क्लिक ऑन एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और सेकंड ऑप्शन इसकी सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर. तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो एक ओटीपी आपके फोन पे आएगा,
ठीक है, उस OTP को आपको फिल करना है एंड देन आप जब वो ATP फिल करोगे तो आपके पास क्या आएगा, डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, फिर आप यस पे क्लिक करोगे। ठीक है, आप उसको यस पे क्लिक करोगे एंड उसके बाद यू विल रीच टू दिस विंडो। ठीक है, यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स होंगी एंड एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्लिक ऑन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, राइट। देन द नेक्स्ट विंडो कम्स अप। तो अब यहाँ पे आपका अभी जो है दैट इज ओनली रजिस्ट्रेशन, आपका फॉर्म भरा है और बिकॉज आपने OTP डाला है तो मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई हो गया। तो स्टिल आई हैव टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, फीस पेमेंट और ईमेल एड्रेस भी वेरीफाई करेगा, ईमेल एड्रेस पे भी आपका कोड जाएगा। व्हाट यू हैव टू डू इज कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जब आप क्लिक करोगे तो यू विल जब आप कंप्लीट पे करोगे तो अगर आप उसमें बाद में करना चाह रहे हो तो यू कैन डू। तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर आएगा ऑन योर फोन नंबर। ठीक है, पासवर्ड जो आपने सेट किया है, कैप्चा यहाँ पे डालना है तो यू विल बी एबल टू लॉग इन। ठीक है, उसके बाद देन कम्स कि आप कंप्लीट करोगे जब एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो फर्स्ट ये आएगा जहां पर यू हैव टू सिलेक्ट द सिटीज। ठीक है, यहाँ पे यू हैव टू सिलेक्ट द एग्जाम सिटीज। अगर आप उसको देखोगे तो here I have to select the exam city। ठीक है, wait a second। ठीक है, तो एग्जाम सिटी में यू विल बी हैविंग टोटल 4 चॉइसेस। ठीक है, फर्स्ट सिटी आप जो भी डालोगे, सपोज आपने दिल्ली NCT डाला है तो उसमें ही विल गिव यू ऑप्शन कि दिल्ली NCR में। ठीक है, सेकंड चॉइस लेटेस्ट से हरियाणा है तो हरियाणा में सिटी आपको दिखाएगा 3-4 जहां पे सेंटर्स आर अवेलेबल, तो यू कैन सेलेक्ट स्टेट एज वेल एज द सिटी। फिर थर्ड चॉइस आपका सपोज चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ में जो भी ऑप्शन अवेलेबल है उनमें से वन यू कैन गो फॉर। ठीक है, फोर्थ इज लेट से उत्तराखंड, तो उसमें आप सिटी आपको दे देगा। ठीक है, देन यू हैव फादर्स ऑक्यूपेशन। ठीक है, फादर्स क्वालिफिकेशन, मदर्स ऑक्यूपेशन एंड मदर्स क्वालिफिकेशन, ये डिटेल आपको नेक्स्ट पेज में भरना है। देन सेम कैप्चा फिल करना है, देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, राइट। इसके बाद जो अगला पेज हमारे पास खुलेगा, ठीक है, दैट विल बी ये वाला पेज आएगा वेयर यू विल बी आपका पर्सनल डिटेल आएगा। ठीक है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स तो अपन ने भर दिया है। देन सेकंड पे आपके पास यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आएगा। पर्सनल डिटेल्स में आधी चीजें ऑलरेडी फिल्ड होंगी। ठीक है, वहां पर आपको नेशनैलिटी अपना सिलेक्ट कर लेना है, योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, योर कैटेगरी क्या है, ठीक है, वेदर यू बिलोंग टू PWD कैटेगरी और नॉट, आर यू डायबिटिक और नॉट, और आपका फैमिली इनकम एनुअली वो यहाँ पे भरना है। ठीक है, देन सेम क्लिक ऑन कैप्चा और सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद व्हेन यू रीच टू द नेक्स्ट में, तो यहाँ पे आपको अपना आइडेंटिटी चूज करना है। ठीक है, चूज आइडेंटिटी। तो चूज आइडेंटिटी के अंदर क्या रहेगा बेसिकली कि आधार कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हो, पैन कार्ड, पासपोर्ट एंड एवरीथिंग यू कैन यूज। ठीक है, पैन कार्ड भी आप यूज कर सकते हो, आधार भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसको यूज करके यू कैन फिल। उसके बाद योर क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आएगा, आपको 10th का पूरे डिटेल्स भरना है। ठीक है, कौन से ईयर में पास किया है, कौन सा बोर्ड है आपका, CBSE लाइक। ठीक है, एग्जाम का रिजल्ट मोड कैसा था, ठीक है, परसेंटेज में था या CGP में था, बोर्ड का नाम क्या है, कौन से ईयर में पास हुआ है। सेम फॉर द 12th, सेम फॉर द ग्रेजुएशन। ये सारी डिटेल्स अपने को यहाँ पे फिल कर लेनी है। ठीक है, वंस यू फिल दीज डिटेल्स, फिर वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज जहां पे अपने को क्या करना है, फोटो एंड फोटोग्राफ अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ का साइज ध्यान रखना है 10 to 200 KB। ठीक है, 10 to 200 KB के बीच होना चाहिए। सेम फॉर द योर सिग्नेचर। ठीक है, सिग्नेचर 10 to 50 KB के बीच होना चाहिए, राइट। तो जस्ट चूज फाइल फ्रॉम योर डिवाइस और उसको अपलोड कर लेना है वन बाय वन दोनों को। देन एंटर द कैप्चा एंड सेव नेक्स्ट। ये करने के बाद देर विल बी आर डायलॉग बॉक्स फॉर द कि जिसमें आपको पूछेगा कि फाइनल सबमिट करना है। ठीक है, तो प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। तो आपको एक पेज दिखाएगा। ठीक है, जब आप इस क्लोज पे क्लिक करोगे इट विल शो यू द फाइनली आपकी सारी डिटेल्स ये यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, जो भी डिटेल्स अपन ने भरा है और जो आपने सेंटर सेलेक्ट किए हैं एग्जाम के उसके सिटी स्टेट के साथ। ठीक है, एवरीथिंग
वो आपको यहाँ पे एक तरीके का रिव्यू आएगा, ऑल द डिटेल्स यू विल फाइंड, ठीक है, एग्जाम्स का, आपके 10th का 12th का, जस्ट चेक एवरीथिंग थॉरोली, कहीं पर भी गलती नहीं होना चाहिए, इट विल नॉट बी करेक्टेड लेटर ऑन, राइट। तो आपका एवरीथिंग शुड बी क्लियरली गिवन हियर, आपका एड्रेस एंड एवरीथिंग, राइट। इस तरीके से दिखेगा लास्ट में आपको, एक सैंपल है ये, तो एक आपका फोटो जो भी आपने यहाँ पे चेक कर लेना, फोटो में इट शुड बी ऑन जनरली वाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए, नोज विजिबल विदाउट एनी मास्क, ठीक है, साइन आपका क्लियरली विजिबल आपको यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर सारी चीजें सही है तो यू हैव टू क्लिक ऑन द डायलॉग बॉक्स है, इन सारे डायलॉग बॉक्स पे आप क्लिक कर लो वन बाय वन, ठीक है, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन यस एंड सबमिट, ठीक है। उसके बाद रह जाएगा आपका दो काम, एक तो फीस पेमेंट का और एक वेरीफाई ईमेल आईडी। तो पहले आपका ईमेल आईडी वेरीफाई होगा, तो क्लिक ऑन दिस, ठीक है, इसमें आप क्लिक कर सकते हो, इसमें क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का विंडो आएगा, ठीक है, जहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस मेंशन होगा, और ये कैप्चा जब आप इसमें फिल करके सबमिट एंड गेट ओटीपी करोगे तो आपके ईमेल पे यू विल गेट अ ओटीपी, ठीक है। ईमेल आईडी चेंज करना है तो दैट यू कैन डू, तो एक ओटीपी आएगा, उस ओपीटी को जब आप वेरीफाई कर दोगे यहाँ पे तो इट विल बी डन। फिर फाइनली यू हैव टू पे द एग्जामिनेशन फीस एज पर, वो यहाँ पे दिख जाएगा कितना आपका बन रहा है एज पर योर कैटेगरी, ठीक है। क्लिक ऑन दिस पे एग्जामिनेशन फी, तो यू विल बी डायरेक्टेड टू द पेमेंट पेज, जहाँ पे एक ही ऑप्शन है ऑनलाइन का, नो ऑफलाइन मोड, प्रोसीड फॉर पेमेंट आपको करना है वहाँ पे, इस तरीके का विंडो दिखेगा, ठीक है। सपोज आप डेबिट कार्ड सिलेक्ट करते हो या द वट एवर गेटवे इज गिवन देयर, यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द थ्री, ठीक है। तो वहाँ पे फीस अमाउंट एंड एवरीथिंग विल बी देयर, प्रोसीड फॉर द पेमेंट, इसके बाद वो आपको पेमेंट पेज पे ले जाएगा, हियर यू हैव टू like card number details and everything you have to do, right, एंड फाइनली कुछ ऐसा दिखेगा आपको आफ्टर फिलिंग ऑल द डिटेल्स, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज, ये सब आपको टिक मार्क दिख जाएंगे, देन यू कैन क्लिक ऑन डाउनलोड द कंफर्मेशन पेज, तो डाउनलोड कंफर्मेशन पेज इट इज लाइक दिस, ऐसा कुछ दिखेगा आपको, इसमें आपके सारी डिटेल्स विल बी मेंशन, ठीक है, कीप इट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। तो ये एज अ एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास मेंशनड है, ठीक है, जिसमें आपका इवन एप्लीकेशन फी पेड है उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे रहेगा, राइट। So I hope all the queries regarding the form filling might be clear. Still, if you have any doubt, you can ask me in the comments and I'll answer there. Thanks for watching. So do like and subscribe and share it. Bye bye.